آداب سے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم. ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین. خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر. ریاستی وزیر اعلیٰ کی جانب سے دیے گئے MC کو ٹارگیٹ کی تکمیل سے متعلق کاموں کا میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے لیا جائزہ. متعلقہ افسران کو دی ضروری ہدایات. وزیٹر سے ملاقات کے لیے سبھی HODs کو 4 تا 5 بجے کے درمیان دفتر میں رہنے کا دیا حکم. RTE کے تحت کمزور طبقات کے طلبہ کو خانگی اسکولوں میں داخلہ دینے کا عمل سست روی سے جاری. سرپرستوں کی جانب سے شکایات موصول ہونے پر داخلوں کا عمل مکمل کرنے کے لیے 10 مارچ تک دی گئی مہلت. قومی سطح پر منعقدہ ڈیزائن فار چینج مقابلوں میں ضلع پریشد پرائمری اسکول کنک شیل نے حاصل کیا پہلا مقام. DFC کی چیف ایگزیکٹو آفیسر نندنی سود نے ویب سائٹ کے ذریعے کیا نتائج کا اعلان. گاؤں والوں میں خوشی کی لہر. اور مقدس ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی بازاروں پر لوٹ آئی رونق. روزہ داروں کے لیے سجنے لگے ہیں بازار. لذیذ کھانوں اور مشروبات کے علاوہ ہر موسم کے پھل بازار میں ہونے لگے ہیں فروخت. خبریں تفصیل سے. ریاستی وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی جانب سے 100 دنوں کے لیے میونسپل کارپوریشن کو دیے گئے ٹارگیٹ کے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے آج سبھی HODs کی ایک اہم میٹنگ طلب کی اور کاموں کا جائزہ لینے کے بعد انہیں ضروری ہدایات دیں. واضح ہے کہ 24 دسمبر کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لینے کے بعد CM دیویندر فڈنویس نے سبھی سرکاری و نیم سرکاری دفاتر کو 100 دن کا ٹارگٹ دیا تھا. لہٰذا میونسپل کارپوریشن کو جو ٹارگٹ دیا گیا تھا اس کے تحت کتنے کام مکمل کیے گئے ہیں اس کا جائزہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے لیا اور سبھی شعبوں کے HODs کو ہدایت دی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے شہریان کو جو کچھ آسانیاں فراہم کروائی جا سکتی ہیں وہ سبھی سال 2025-26 کے بجٹ میں شامل کریں. میونسپل افسران و ملازمین کے پاس جتنی اسناد اور توصیف نامے ہیں رائٹ ٹو سروس ایکٹ کے تحت ان کے اندراجات کیے جائیں. میونسپل کمشنر نے مزید کہا کہ راستوں میں موجود گڑھوں سے متعلق اب آن لائن شکایتیں ملنے لگی ہیں. لہٰذا وہ شکایات کب تک دور ہوں گی اس کی اطلاع آن لائن درخواست گزار کو دی جائے. AI اور ڈیجیٹلائزیشن کا بھرپور استعمال کیا جائے اور ویب سائٹ کو اپڈیٹ کیا جائے. اسی طرح عوام سے موصولہ کتنی شکایات دور کی گئی ہیں، کتنی التواءیں پڑی ہیں، فیڈ بیک میکانزم کے تحت یہ ریکارڈ مینٹین کیے جائیں. اس کے علاوہ سبھی شعبوں میں صاف صفائی کے انتظامات درست کرنے، وہاں موجود الماریوں کو رنگ و روغن کرنے کی ہدایت بھی انہوں نے دی ہیں. میونسپل ریکارڈ سے متعلق انہوں نے یہ اطلاع دی کہ ریکارڈ روم میں موجود ناکارہ فائلوں کے 30,630 گٹھے بنائے گئے جن میں سے 16,949 گٹھے اب تک ضائع کیے جا چکے ہیں. اس طرح سے بیکار فائلوں اور کاغذات کا 55% ریکارڈ ضائع کر دیا گیا ہے. جالنا ضلع پریشد کے بدعنوان سیکنڈری ایجوکیشن آفیسر منگل دھوبے کو معطل کیے جانے کے مطالبے پر آئندہ 4 مارچ کو ڈپٹی ڈائریکٹر آفس پر احتجاج کیا جائے گا. یہ اطلاع شکشک سنگھٹنا کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس میں دی گئی. واضح ہو کہ مذکورہ ایجوکیشن آفیسر منگل دھوپے نے مرٹواڑہ شکشک سنگھٹنا کے جالنا کے نائب صدر جگن واگموڑے کے خلاف معاملہ درج کروایا تھا. اس کے بعد اب مذکورہ اساتذہ تنظیم مرٹواڑہ شکشک سنگھ شدید مشتعل ہو گئی ہے اور اب انہوں نے ایجوکیشن آفیسر منگل دھوپے پر بدعنوانیوں سمیت مختلف سنگین الزام عائد کیے ہیں اور آئندہ روز 4 اپریل کو اورنگ آباد واقع ایجوکیشن ڈپٹی ڈائریکٹر آفس پر دھوپے کے خلاف شدید آندولن کرنے کا اعلان کیا ہے. اس احتجاج و مظاہرے کی اطلاع تنظیم کی جانب سے منعقد ایک پریس کانفرنس میں دی گئی جس میں مذکورہ شکشک سنگھٹنا کے عہدیداران و کارکنان موجود تھے. वेतन आणि आज रोजीची त्यांची संपत्ती यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ वृद्धी आणि विकास झालेला आहे. तर आमचं नम्र निवेदन आहे आपल्या माध्यमातून की त्यांच्या एकूणच संपत्तीची चौकशी झाली पाहिजे. त्यांच्याच नाही त्यांच्या नातेवाईकांच्या संपत्तीची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. कारण मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी शंकेला वाव आहे. म्हणून मराठवाडा शिक्षक संघ या निमित्तानं आणि हे जे काही मूलभूत स्वरूपाचे मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत
आपण ते आमचं नम्र निवेदन आहे की आपल्या माध्यमातून आपण लोकप्रिय माध्यमांचे प्रतिनिधी आहात, आपल्या माध्यमातून जनमानसापर्यंत घेऊन जावं आणि ज्या देशात शिक्षकाची प्रतिमा जाणीवपूर्वक मलिन करण्याचा प्रयत्न केला जातो त्या देशामध्ये भावी पिढ्या घडवण्याचं काम योग्य दिशेनं होऊ शकत नाही. म्हणून शिक्षकांची बदनामी करणाऱ्या या म्हणजे त्याला काय म्हणू विकृत मनोवृत्तीची जी काही मंडळी आहे त्यांना आपल्या सहाय्यातून पायबंद घालावं अशी नम्र विनंती मी या प्रसंगी करतो. तुम्ही ते कराल अशी अपेक्षा बाळगतो. ज़िला जालना के लिए भी हुकूमत के शोबे सेहत की जानिब से कैंसर मोबाइल वैन फराहम की गई है, जिसका इफ्तिताह सिविल सर्जन के हाथों किया गया। आया रहे कि इस कैंसर वैन की फराहमी के सबब अब गांव-गांव में कैंसर के मरीजों की जांच आसान हो जाएगी। ये वैन ज़िले के हर तालुके से गांव-गांव जाएगी और वहां के साकिनान की जांच की जाएगी। ज़िले को गुज़िश्ता रोज़ 1 मार्च को ये वैन अलाट कर दी गई। अब 18 दिन ये वैन गांव-गांव के सफ़र करेगी और कैंसर की जाँच करेगी। ये वैन आज शहर के ज़िला अस्पताल बराए ख़वातीन पर फराहम की गई और यहीं इस वैन का इफ्तिताह ज़िले के सिविल सर्जन डॉक्टर राजेंद्र पाटिल के हाथों किया गया। इस मौके पर जालना ज़िला लेडीज़ अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गवारे के अलावा दीगर कई डॉक्टर्स और शोबे के अफसरान और दीगर मुलाजमीन मौजूद थे। आजपासून एक कर्करोग तपासणी म्हणजे ओरल कॅन्सर आणि सर्वायकल कॅन्सरच्या तपासण्या करण्यासाठी कर्करोग मोबाईल व्हॅन जालना जिल्ह्यात 1 तारखेपासून आलेली आहे। तर आज सकाळी राजूरला सुरुवात होणार आहे, त्याच्यानंतर उद्यापासून हसनाबाद असं प्रत्येक तालुक्यात 18 दिवस काम करणारी जिल्ह्यामध्ये आणखी प्रत्येक तालुक्यामध्ये जागा ठरलेली आहेत, त्या प्रकारे आम्ही त्याची तपासणी करायला गाडी मोबाईल व्हॅन जाणार आहे। आरटीई के तहत दाखिलों का अमल मुकम्मल करने की गर्ज से सरपरस्तों को अपने दस्तावेज़ात की जांच करवाने के लिए 10 मार्च तक मोहलत दी गई है। ये इत्तला मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। आ रहे कि वंचित समाज और कमज़ोर मईशत के हामिल तबक़ात के लड़के लड़कियों को खानगी तालीमी इदारों की कुल निशस्तों में से 25% निशस्तों पर मुफ्त दाखिले दिए जाते हैं। शोबा तालीम की जानिब से साल 2025-26 के तालीमी साल में दाखिले के लिए सरगर्मियाँ भी शुरू कर दी गई हैं और ऑनलाइन दरख्वास्त के इंदराज के बाद दाखिलों के लिए नामों की कुरानंदाजी के ज़रिए 14 फरवरी को हतमी इंतखाब की फहरिस्त जारी कर दी गई थी और मुंतखब तलबा तालिबात को दाखिले के लिए 14 से 28 फरवरी तक की मोहलत दी गई थी। ताहम दाखिले के इस अमल में कागजात और दस्तावेजात की जांच पड़ताल का अमल इंतहाई सुस्त रफ्तार होने के सबब सरपरस्त अपने बच्चों के दाखिलों की तकमील नहीं करवा सके। इस तरह की शिकायत कई सरपरस्तों ने की तो अब दाखिलों के अमल को मजीद मोहलत देते हुए उसकी आखिरी तारीख 10 मार्च कर दी गई है। इस तरह की इत्तला मुतल्लिक़ा ज़राए से मिली है। साबिक़ कारपोरेटर आशा बिनौड़े ने उनकी मिल्कियत पर बोगस दस्तावेज़ात के ज़रिए फेरफार किए जाने का इल्ज़ाम एडिशनल तहसीलदार पर लगाया है। लिहाजा ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने एडिशनल कलेक्टर की जांच के अहकामात दिए हैं। साबिक़ कारपोरेटर आशा बंसोड़े की शिकायत पर ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने एडिशनल तहसीलदार नितिन गर्जे की तहक़ीक़ात का हुक्म देते हुए 7 मार्च तक उसकी रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को दी है। जब इस मामले में एडिशनल तहसीलदार नितिन गर्जे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दफ्तरी कामों में किसी भी एजेंट या दलाल की मदाखलत किसी हाल बर्दाश्त नहीं की जाती और यहाँ कोई एजेंट नहीं है। अलबत्ता ज़मीनों के तनाज़ात के जो मामलात होते हैं, अगर फ़ैसला किसी के ख़िलाफ़ जाता है तो वो इस तरह के इल्ज़ामात आयद करता है, जो कोई नई बात नहीं है। 7 मार्च को क्या रिपोर्ट मंजर आम पर आती है, सभी की तवज्जो इस रिपोर्ट पर मरकूज़ है। तालुका खुल्दाबाद के ज़िला परिषद स्कूल कनकशील ने कौमी सतह पर मुनक़दा डिज़ाइन फॉर चेंज मुकाबलों में पहला मकाम हासिल किया है, जिस पर गांव वालों में खुशी की लहर है।
वाज़ेह है कि इस कौमी सतह के मुकाबले डिज़ाइन फॉर चेंज में मुल्क भर से 28 रियासतों से 850 प्रोजेक्ट शरीके मुकाबला किए गए। ये मुकाबले आलमी इदारे डिज़ाइन फॉर वर्ल्ड की जानिब से DFC इंडिया के ज़रिए मुनक़िद किए गए। ताल्लुक़ा खुलदाबाद के ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल कनकशील के तलबा व तालिबात के प्रोजेक्ट आमी छोटे रिपोर्टर्स ने दूसरे सभी प्रोजेक्ट्स को पीछे छोड़कर नुमाया मकाम हासिल करते हुए ये प्रोजेक्ट इनाम का हकदार करार पाया। ये इत्तला हाल ही में DFC इंडिया की वेबसाइट के ज़रिए किए गए ऐलान में DFC की CEO नंदनी सूद ने दिल्ली में की है। वाज़ेह हो कि मज़कूरा आलमी इदारा डिज़ाइन फॉर चेंज वर्ल्ड दुनिया भर के 70 ममालिक में सरगर्म अमल है। भारत में मुनक़िद डिज़ाइन फॉर चेंज मुकाबलों के सभी प्रोजेक्ट्स को 3 इंतहाई मुश्किल व सख्त जांच के मरहलों से गुजारा गया और आखिरी सेशन में स्पेन और घाना समेत 17 ममालिक के कौंसिल मेंबरान ने कनकशील स्कूल के तलबा व तालिबात सोहम कामठे, अमर अंबादास पवार, मुस्कान रऊफ शेख, प्रेम सुनील कामठे, स्नेहल काशीनाथ कामठे इनके प्रोजेक्ट आमी छोटे रिपोर्टर्स को जिसमें खबरनामे के ज़रिए तालीम दिए जाने की तजवीज़ दुनिया के सामने पेश की गई, इस प्रोजेक्ट ने पहला इनाम हासिल किया है। इस आलमी सतह के मुकाबले में बेहतरीन प्रोजेक्ट पेश करने और इनाम अव्वल हासिल करने पर स्कूल और तालीमी इंतज़ामिया ने इन तलबा और उनके असातिज़ा की सताइश की और मुबारकबाद दी है। मुक़द्दस माह रमज़ान में अल अक्सा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा की ज़ियारत के लिए मक्का मुअज़्ज़मा 5 काफ़िले जा चुके हैं और आज़मीन मोहम्मद दानिश मोहम्मद वसीम की रहनुमाई में इबादतों में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, अल अक्सा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से शाबान और रमज़ान के महीने में आज शाम तक 5 काफ़िले उम्रा अदायगी के लिए रवाना किए जा चुके हैं, जो मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में मुक़द्दस माह रमज़ान की इबादतों में मसरूफ़ हैं। मोहम्मद दानिश मोहम्मद वसीम की रहनुमाई में मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे इन आज़मीन ने टूर्स एजेंसी की जानिब से फ़राहम करदा सर्विसेज पर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। उन लोगों ने इस बात पर भी मसरत का इजहार किया है कि मुक़द्दस माह रमज़ान के रोज़े और नमाज तरावीह हरम शरीफ में अदा करने का खालिक़े कायनात ने उन्हें मौका फ़राहम करवाया है। अल अक्सा के डायरेक्टर मोहम्मद वसीम के मुताबिक आइंदा 10 मार्च, 17 मार्च, 27 मार्च, 4 अप्रैल और 9 अप्रैल को आज़मीन उम्रे के लिए रवाना होंगे। मुक़द्दस माह रमज़ान में उम्रे के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से महदूद वीज़ा जारी किए जाते हैं, इसलिए इस माह में जो लोग उम्रे के लिए रवाना होना चाहते हैं वो आज ही सिटी चौक में वाक़े अल अक्सा के दफ्तर पर पहुंचकर बुकिंग करवा लें। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हज 2025 के लिए भी बुकिंग जारी है, इसलिए ख्वाहिशमंद अफराद जल्द अज जल्द अपनी सीट रिजर्व करवा लें। माह सियाम के आते ही बाज़ारों पर रौनक लौट आई है और रोज़ेदारों के इफ्तार के लिए मुख्तलिफ़ अक़साम के पकवान और फलों की दुकानें सज गई हैं। रिवायतों में आता है कि मुक़द्दस माह रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देता है, जिसके सबब इस माह के साया फगन होते ही बाज़ारों में रौनक लौट आती है और रोज़ादारों के इफ्तार का हर सामान मार्केट में दस्तियाब रहता है। शाह बाज़ार में वाक़ सफ़ा कलिया हाउस में भी ख़ास रमज़ान के लिए नांदेड़ का लजीज़ हरीस दस्तियाब है। इसके अलावा यहाँ रात 8 ta 1 बजे तक स्पेशल पाए के अलावा इफ्तार के लिए इम्दा क्वालिटी के टिकिया समोसे, चिकन रोल, चिकन लेग पीस और भी मुख्तलिफ अक़साम के तलहन दस्तियाब हैं। सफ़ा कलिया हाउस के मालिक मिर्ज़ा असलम बेग के मुताबिक वो क्वालिटी में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते, इसलिए वो इनके पास फ़रोख्त किए जाने वाले सभी पकवान, फिर चाहे वो नांदेड़ का अरबी हरीस हो या फिर नान कलिया बिरयानी व तहारी हो या फिर ख़ास माह रमज़ान के लिए फ़राहम करवाए जा रहे पकवान हो, इनकी अव्वलीन तरजीह उम्दा क्वालिटी के खाने की है जो वो अपने ग्राहकों को खिलाना चाहते हैं, इसलिए उनके पकवान शहरियान की पहली पसंद बन चुके हैं और बरस के 12 महीने कलिया हाउस पर ग्राहकों की भीड़ रहती है जो उम्दा क्वालिटी के लजीज खाने की शौकीन है। स्पेशल जो है तो नांदेड़ का हरीश रखा गया है, उसके बाद अपने खलिया भी मिलता है 1 नंबर, और अभी पाए का भी इंतजाम किया गया है रमज़ान के वास्ते। कब से कब तक ये जो है तो 8 बजे से लेके रात में 1 बजे तक के स्पेशल पाया मिलता है यहाँ सफ़ा खलिया हाउस, शाह बाज़ार, चंपा चौक। हमारे खलिया हाउस पर शाह बाज़ार चंपा चौक पर ज़रूर आइए और इस खानों का जो है तो
टेस्ट लेके देखिए आप, एक बार खाएंगे बार बार आएंगे। खास रोज़ादारों की सहूलत के लिए इस साल भी बॉम्बे बांद्रा फालूदा सेंटर के मालिक अनवर खान ने बुड्डी लेन इलाके में अपना आउटलेट शुरू किया है, जहां ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। नाजरीन, यूं तो शहर में आपको हर जगह फालूदा दस्तयाब हो जाएगा, मगर अनवर खान के फालूदे का जायका ही कुछ और है, और यही वजह है कि शाहगंज के इलाके में उनका मुस्तकिल आउटलेट होने के बावजूद शहर ही नहीं इलाके मराठवाड़ा से लोग अनवर खान का बॉम्बे बांद्रा फालूदा चखने के लिए बुड्डी लेन का रुख करते हैं। अनवर खान का कहना है कि उन्होंने अपने फालूदे का कारोबार बुड्डी लेन ही से शुरू किया था, इसलिए वो हर रमज़ान में रोज़ेदारों के लिए यहाँ अपना स्टॉल लगाते ही हैं, और ये उनकी वालिदा की दुआओं का नतीजा है कि उनके कारोबार में बरकत ही बरकत है। खुद उनकी वालिदा रोज़ादारों के लिए तैयार किए जाने वाले फालूदे के लिए नूडल्स बनाती हैं, और माँ के हाथ का जायका उनके पास फरोख्त होने वाले फालूदे में होने के सबब ये इलाका मराठवाड़ा के लोगों की पहली पसंद बन चुका है। साल रवां उन्होंने बुड्डी लेन में मौजूद सागर होटल से मुत्तसिल अपना स्टॉल लगाया है। ज़िला परिषद एम्प्लॉइज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के आम इंतखाबात में विकास पैनल को शानदार कामयाबी मिली है, लिहाजा पैनल के रूह रवां प्रदीप राठौड़ का टीचिंग व नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ महासंघ की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि ज़िला परिषद एम्प्लॉइज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतखाबात में शोबे तालीम के OS प्रदीप राठौड़ के सहकार विकास पैनल को कामयाबी मिली है, जिस पर ज़िला महासंघ की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और नौमुंतखब अरकान को मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए गए। इस मौके पर ज़िला महासंघ के ज़िला सदर पठान हैदर खान, रियासती खाजिन दिनेश पाटिल, कारगुजार ज़िला सदर तानाजी ताइडे, करण पवार, भगवान जाधव और नरेश भालेराव भी मौजूद थे। आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले स्कूलों की सालाना गैदरिंग जोश खरोश से मनाई गई, जिसमें स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स पेश करके हाजरीन से दाद वसूल की। आज़ाद अली शाह एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले शाइनिंग स्टार इंग्लिश एंड मराठी स्कूल और MGM वस्तानवी और उर्दू प्राइमरी व सेकेंडरी स्कूल की सालाना गैदरिंग जोश खरोश से मुनक़िद की गई। ही फील्ड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भगत सिंह दरक के हाथों तकरीब का इफ्तिताह अमल में आया। मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल मज़हर फारूकी की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में मारूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आलोक देवरा, सीनियर सोशल एक्टिविस्ट पद्मा प्रेम देवरा, मारू बिल्डर व MIM कायद बाबा बिल्डर, आज़ाद NGO के सदर सैयद फैमुन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर खान साजिद पाशा, सोसाइटी की जॉइंट सेक्रेटरी मदीहा फातिमा मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर स्कूली तलबा ने खूबसूरत सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए, जिन्हें हाजरीन ने खूब पसंद किया। इसी तरह मेहमानों के हाथों स्कूल के होनहार तलबा में इनामात तकसीम किए गए और आज़ाद अली शाह एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से माशरे में उम्दा समाजी खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को अवार्ड ऑफ मराठवाड़ा से डेकोरेट किया जाता है। साल रवां इस अवार्ड भगत सिंह दरात और योगेश देवड़ा को दिया गया। इसी तरह बेस्ट पेरेंट्स का अवार्ड से अलीम पठान, फिरदौस फिरोज बेग और असलम शेख को नवाजा गया। ताल्लुक़ा खुल्दाबाद में राजा राय टाकली से करीब रोड से मुत्तसिल मंडप के बाहर खड़ी की गई कई मोटरसाइकिलों को एक तेज़ रफ्तार पिकअप व्हीकल ने रौंद दिया। इस हादसे में 2 अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। आया रहे कि ताल्लुक़ा खुल्दाबाद के टाकली राजा राय तक काटशोरी फाटा के दरमियान सड़क से मुत्तसिल एक शादी का मंडप लगा हुआ था और शादी मंडप में कई लोग बातचीत और खुशगपियाँ करते बैठे थे, जबकि उनमें से अक्सर की 2 व्हीलर गाड़ियाँ बाहर सड़क किनारे खड़ी हुई थी। इस असना रोड से गुजर रही एक सफ़ेद रंग की पिकअप वैन ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और मंडप से करीब सड़क के पास खड़ी गाड़ियों को उसने कुचल दिया, जिसमें 4-5 गाड़ियाँ बुरी तरह मुतासिर हो गई और चूंकि पिकअप उन गाड़ियों पर चढ़ गई थी, इसलिए 1-2 गाड़ियां उसमें फंस जाने के सबब गाड़ी रुक गई और कोई बड़ी अनहोनी टल गई। जबकि इस हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार और एक सड़क किनारे खड़ा लड़का जख्मी हो गए और उन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए शरीक करवाया गया है। खुल्दाबाद पुलिस को इत्तला हुई तो वो भी फौरन मौके पर पहुंची और मज़कूरा पिकअप वैन को अपनी तहवील में ले लिया। बीड़ बाईपास रोड पर कार्रवाई अंजाम देते हुए
क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 आदि 2 व्हीलर चोरों को गिरफ्तार किया है। मुलजिम का नाम अंबर उर्फ बाड़ू विट्ठल देवकर बतलाया गया है। पुलिस से मिली मालूमात के मुताबिक मुलजिम एक मसरूका 2 व्हीलर लिए फिर रहा था और ये इत्तला जराइम शाख के इंस्पेक्टर संदीप सोलंके को मिली। उन्होंने फौरी अपने स्क्वाड की मदद से मुलजिम देवकर को गिरफ्तार कर लिया। उसने बाबा पेट्रोल पंप के पास से पड़ीकर हॉस्पिटल के पार्किंग से मोटरसाइकिल सरका करने का इकरार कर लिया। उसे जब तहवील में लेकर उसकी सख्त जांच पड़ताल की गई तो उसने लासूर स्टेशन से 2 व्हीलर चुराने की बात भी बतलाई। उसने बतलाया कि वो कोई भी चुराई हुई गाड़ी पेट्रोल खत्म होने तक इस्तेमाल करता था और फिर जहां ईंधन खत्म हो जाता वो जगह मिले वहां वो गाड़ी छोड़कर उसके लिए गाहक तलाश करता और कम कीमत में गाड़ी बेच दिया करता था। उसने मुख्तलिफ मकामात से मसरूका 6 गाड़ियां छावनी शमशान भूमि में छुपा रखी थी, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने वो गाड़ियां भी बरामद कर ली हैं। ये कार्रवाई क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संदीप गुरमे, PSI संदीप सोलंके, जमादार योगेश और दीगर अमले ने अंजाम दी है। खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर आला की जानिब से दिए गए AMC को टारगेट की तकमील से मुताल्लिक़ कामों का म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने लिया जायज़ा। मुताल्लिक़ा अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। विजिटर्स से मुलाकात के लिए सभी HODs को 4 ta 5 बजे के दरमियान दफ्तर में रहने का दिया हुक्म। RTE के तहत कमज़ोर तबक़ात के तलबा को खानगी स्कूलों में दाखिला देने का अमल सुस्त रवि से जारी। सरपरस्तों की जानिब से शिकायत मौसूल होने पर दाखिलों का अमल मुकम्मल करने के लिए 10 मार्च तक दी गई मोहलत। कौमी सतह पर मुनक़दा डिज़ाइन फॉर चेंज मुकाबलों में ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल कनकशील ने हासिल किया पहला मकाम। DFC की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नंदनी सूद ने वेबसाइट के ज़रिए किया नताइज का ऐलान। गाँव वालों में खुशी की लहर। और मुक़द्दस माह रमज़ान के आगाज़ के साथ ही बाज़ारों पर लौट आई रौनक। रोज़ादारों के लिए सजने लगे हैं बाज़ार। लजीज खानों और मशरूबात के अलावा हर मौसम के फल बाज़ार में होने लगे हैं फ़रोख्त। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।